इकबाल नर्सिंग होम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। कि गुरदास मान ਵੱਲੋਂ, जी हाँ, पंजाब ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बहुत ही एक अच्छा शुभ दिन है। वो इतने आए ने ते आए भी अचानक ही ते इन्नी खुशियां बन के गए ने कि मैं मैंशन नहीं कर सकता। सारा स्टाफ खुशी नाल नच रहा सी, पेशेंट्स खुशी नच रहे सी ते कोई भी ऐसा आदमी जिथे तुसी स्माइल नहीं देखी ते उन्हें जाके अपने आप सारे अंदर लेबर रूम जाके नर्स जाके बच्चे नूं, नवे बच्चे जिहड़े जम्मे ने उन्होंने आशीर्वाद दिता, पेशेंट्स नूं आशीर्वाद दिता। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਰੀ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਨਖਰਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਬੁਲਾਏਗਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਈਂ ਬੁਲਾਣਗੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਈਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਨਾ ਖਿਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕਬਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਕਬਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ अभिषेक बहल, टाइम्स पंजाब टीवी। गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं। जी आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आज लाइव आपके साथ रूबरू होने जा रही हूं। हम पहुंच चुके हैं इकबाल नर्सिंग होम पे, जहां पर आज आपको एक
ऐसी टीम मेंबर से मिलवाएंगे जो लगभग लास्ट 78 उन्होंने स्टार्ट किया था एक क्लब और बहुत अच्छे सोशल वर्क के साथ वो कनेक्टेड है। इनर व्हील क्लब ऑफ लुधियाना, आज उनके टीम मेंबर्स वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आज यहाँ पे पहुंचे हैं इकबाल नर्सिंग होम पर, जहां पर इकबाल नर्सिंग होम की तरफ से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। और हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर लगातार बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स तो हम अटेंड करते हैं, लेकिन जो मदर से आज की वो कितना अवेयर हो रही है ये आज हम सारे मेंबर से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर इकबाल से, और जो इनर व्हील क्लब ऑफ लुधियाना के मेंबर्स हैं उनके पास भी हम जाएंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। सर, जो आज का सेमिनार था उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो सोशल वर्क के साथ बहुत सारे जो क्लब्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं और इस तरीके के जो इनिशिएटिव होते हैं ये बहुत खूबसूरत होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय नारी के साथ जोड़ रहे हैं आज के समाज को। इनर व्हील क्लब तो सबसे पुराना क्लब है और एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस क्लब है। यस सर। और इनकी बहुत स्प्रेडिंग ताकत है। जी। दे कैन कन्वे द मैसेज टू द masses. They are already engaged in the social service. यस सर। They are doing everything type of whatever good they are doing for the community. So what is happening is the breastfeeding trend is decreasing. Yes. So through them we want to spread breastfeeding is essential for the child and good for the mother also. So that's why we selected, and they were very kind to come here and listen to the talk by Dr. Mahak here. And I think this news will spread and the knowledge will spread, rather not news, but the knowledge will spread to the daughter-in-laws and fathers, and I think breastfeeding will become essential. Because sir, you are one of the senior doctor of Ludhiana. सर, अगर हम बात करें, आपने जैसे कहा कि डिक्रीज हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, सर व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट कि कहीं ना कहीं जो लेडीज में एक फोबिया है कि ब्रेस्ट फीडिंग से उनका फिगर खराब हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिथ है जो आज की लेडीज में है, बहुत ज्यादा हमने देखने को मिल I रहा है। think this is because of lack of knowledge. Otherwise, if you do the breastfeeding, आपको breast cancer नहीं होती है, जी। ovarian cancer नहीं होती है, lot of cancers से आप बच जाते हो। तो breast will return back to normal once you stop the feeding. Otherwise, also if you see the thing, the shape of breast improves after breastfeeding, यस सर। and I think they should do. एंड आज के सेमिनार में इसी तरीके की कहीं ना कहीं अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की गई है। हाँ बिल्कुल, हमने ब्रेस्ट बैंक के बताया इनको कि बाहर इवन इंडिया में भी अब ब्रेस्ट मिल्क के बैंक बन गए हैं। If you got extra milk, you give it a bank. They will preserve it for. Yes. This is a formula of 5, you know. So if you freeze the milk, then you can preserve for 5 years. So 5 hours, 5 years, 5 minutes this way, you know. Formula of 5, and I think we should give even breast milk donation, which are like blood donation, यस सर। everything. I think this knowledge will also come. यस सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। तो चलिए अब आपको मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर मिनी से, आईवीएफ एक्सपर्ट। मैम, पहले भी हम आपके साथ रूबरू होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत सेंसिटिव है। अगर हम आज की मदर्स के बारे में बात करें, जैसे हमने सर को कहा कि एक फोबिया रहता है कि उनकी फिगर पे इफेक्ट आएगा, या कहीं ना कहीं वो टाइम ही नहीं है उनके पास। सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं कि हम वर्किंग लेडीज हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने बेबीज को फीड कराने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक स्लोगन है, ब्रेस्ट फीड इज द बेस्ट फीड। यस। सो बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी है और माँ के लिए भी बहुत अच्छी है। सो बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है, उसको डिजीजेस नहीं होते, उसको इम्यूनिटी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं, और मदर के लिए जैसे सर ने बताया कि कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। Yes. और आपकी फिगर भी खराब नहीं होती। एंड अगर हम पहले के ना मदर्स का करती थी कि बेबीज की जो ब्रेन ग्रोथ है वो ब्रेस्ट फीडिंग से ही होती है, तो क्या इस चीज में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसे फैक्टर्स हैं उसमें जिससे बेबी का ब्रेन अच्छा डेवलप होता है। जी। सो हेल्प करता है, हर चीज में हेल्प करता है। बच्चे की ग्रोथ, उसको फीवर्स कम होते हैं, उसको डिजीजेस कम होती हैं, उसकी इम्यूनिटी लेवल्स अच्छी हो जाती हैं, और एक अच्छा हेल्दी बच्चा बनता है। मैम, एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इनर व्हील क्लब ऑफ लुधियाना? क्योंकि जो लेडीज आज यहाँ पे पहुंची हैं, एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव लेकर आज वो पूरी सोसाइटी को जोड़ रही हैं, और आज आपके हॉस्पिटल को मौका मिला है कहीं ना कहीं। हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि इनर व्हील मेंबर्स के यहाँ पे आए हैं और उन्होंने इतनी अवेयरनेस हमें स्प्रेड करने का मौका दिया है। वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव देम हियर। थैंक यू सो मच मैम। मिसेस इकबाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे?
बीइंग एज अ मदर, बीइंग एज अ सीनियर डॉक्टर, जो आज की मदर्स हैं उनके लिए हम चाहते हैं, आप क्या खूबसूरत मैसेज देना चाहेंगे रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, हर मदर को देनी चाहिए। इसमें कितने एंटीबॉडीज भी होते हैं जो कि बच्चे में चले जाते हैं और उनको बीमारियों से बचाते हैं। और ये हमें मौका दिया इनर व्हील वालों ने कि हम ये सारा लोगों को बता सके, अवेयर करा सके कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आप देखिए कि मेंबर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनर व्हील क्लब के, जिनसे हम रूबरू होंगे और उनसे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सालों से वो सोशल वर्क के साथ कनेक्टेड है। लेकिन आज का जो खूबसूरत इनिशिएटिव है वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैम आपसे हम रूबरू होना चाहेंगे, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्लीज। हाँ जी, मैं किरण थापर, प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब। किरण थापर मेरा नाम है। तो मैं इसमें कम से कम 30 सालों से जुड़ी हुई हूँ, 30 इयर्स पे। और मैम हमने देखा है कि आप काफी सालों से हॉस्पिटल में हर साल विजिट करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स लेकर, कहीं ना कहीं सोसाइटी को आप अवेयर कर रहे हैं। लेकिन आज का जो एक खूबसूरत टॉपिक जिसके साथ आप हर एक मदर को जोड़ रहे हैं या हर एक उस लेडी को जोड़ रहे हैं जिनकी अब शादी होने वाली है, तो मैम हम चाहते हैं कि एक खूबसूरत इनिशिएटिव के साथ आज आप इकबाल नर्सिंग होम में पहुंचे हैं। कैसा रहा आपका सेमिनार सेशन, कैसा रहा आपका? इट वॉज वेरी वेरी well hosted by Dr. Iqbal, but Dr. Mene and everyone. और हम जल्दी से जल्दी इनके पास और दूसरे अपने लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स। इतना अच्छा लगा इधर आके हमें। और हमारा जो मेन क्लब है, हम निर्दोष के साथ जैसे जुड़े हो, हमारे बहुत सारे दूसरे डिफरेंट भी सोसाइटी के साथ होते हैं, जो सोशल एजिंग का, सर्वाइकल कैंसर का, सर्विकल कैंसर्स, और ये मेन लेडीज की जो भी होते अवेयरनेस के लिए, बच्चों के लिए, तो उसके हिसाब से हम आगे आगे और भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके लिए। बिल्कुल। मैम आपसे भी बात करना चाहेंगे। मैम कहते हैं ना कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास माँ बनना होता है। माँ बनने के बाद जो सबसे पहली खुशी होती है कि जब बच्चा माँ की गोद में आता है, और डॉक्टर्स का कहना होता है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन आज की जो लेडी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा एक डर, जो हमने पहले बात की डॉक्टर इकबाल से। जस्ट अ मिथ, शर्म नहीं है। एंड द फर्स्ट जो ब्रेस्ट मिल्क आता है, कोलोस्ट्रम कहते हैं उसको, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर द चाइल्ड। उसको कभी भी वो नहीं करना चाहिए। हाँ, दैट हैज टू बी यूज्ड। प्लस एक और है, यू गेट द फिगर बैक। ये भी एक मिथ है ना कि लड़कियों को कहना चाहिए कि यू विल गेट द फिगर बैक राइट इजीली इफ यू फीड योर चाइल्ड। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर इकबाल ने कहा कि कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग के जो हम देखते हैं, ब्रेस्ट से रिलेटेड कैंसर्स की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। लेकिन सेमिनार में आज यही आपको पता लगा, या सभी को पता है कि कैंसर से बचने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है। वो भी है, प्लस द बेस्ट मिल्क है, दैट इज द बेस्ट फूड दैट अ चाइल्ड गेट्स, एंड हेल्दीएस्ट, cleanest. So all these things should be conveyed to the youngsters so that they follow and do breastfeeding. थोड़ा सा time दे, बस that has to be done. So in an initial 6 months, after that one can easily change over to healthy other food, but initial 6 months for the immunity of the child also. वेरी वेल सेड। तो मैम अब आपके पास पहुंचते हैं। आप सबसे पहले ना हम चाहते हैं लाइव, आपके हाथ में हम एक पॉट देख रहे हैं खूबसूरत सा, जरा सभी को दिखा दीजिए। कहाँ से मिला ये आपको? कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? बोलो सारे। डॉक्टर इकबाल नर्सिंग होम। तो क्या इससे खूबसूरत गिफ्ट हो सकता था कोई? This is the best gift, evergreen. That's why I'm wearing green. Evergreen, that's why I'm wearing green. Evergreen like this hospital. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपने सबने सुना, इनर व्हील की बात सुनी, इनर व्हील क्लब है। एक बात है कि वी रनिंग अ स्कूल कॉल्ड निर्दोष फॉर मेंटली चैलेंज सिंस 1978। 45 ईयर्स से दीपक हॉस्पिटल के एडजॉइनिंग है, उसमें 60 बच्चे हैं, 10 टीचर्स हैं। हम चला रहे हैं उस स्कूल को, एंड वी वुड लाइक दैट पीपल वुड विजिट दैट स्कूल इवन फ्रॉम द इकबाल, बिकॉज वहाँ भी मदर्स आती हैं उनको डिस्कस करने। दिस इज वन USP ऑफ इनर व्हील क्लब लुधियाना, एंड वी फॉर दैट इट इज लाइक अ गुरुद्वारा और मस्जिद फॉर अस। सो जो भी कोई बात होती है हम निर्दोष की बात जरूर करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वाज आल्सो वेरी गुड, एंड इकबाल नर्सिंग होम इतना अच्छा मुझे ही नहीं था कि भी इतना अच्छा, सो वेल प्लान्ड एंड सो इंफॉर्मेटिव।
It was very good. And then यहाँ हमारे बच्चे हुए हैं डॉक्टर हॉवी के, ही मस्ट इन CMC डॉक्टर इकबाल ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ डॉक्टर हॉवी ਕੋਲ ਹੋਏ ਹੈ। यहाँ देखिए टीम मेंबर्स हमारे साथ जुड़े। मैम आपके पास वापस आते हैं, 1 मिनट। एक डॉक्टर के साथ हम अभी पहले बात करना चाहेंगे जो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं और उनसे उनकी तरफ से आज ये जो खूबसूरत सेमिनार है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इतने खूबसूरत इनिशिएटिव की आप आज जुड़े हैं। मैम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका। मेरा नाम डॉक्टर महक मंजाल है और मैं एक पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ। ओके, वेरी नाइस। तो मैम बीइंग एज अ डॉक्टर, बीइंग एज अ लेडी, कहीं ना कहीं जो एक खूबसूरत इनिशिएटिव आज जो सेमिनार जिसके ऊपर रखा गया, टीम मेंबर्स जुड़े, क्लब के मेंबर्स जुड़े। मैम व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग? आपने सेमिनार में तो डेफिनेटली अवेयर किया, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं तो आपके साथ लाइव जुड़ के आपको सुनना चाहेंगे। सी, मैं अपने सब पेशेंट्स को यही बताती हूँ दैट मदरहुड डज नॉट कम विद अ मैनुअल। अब हमारे पास कोई कुक बुक नहीं है, पर हमें एज मदर्स, एज डॉटर्स, एज डॉटर इन लॉज को, अपने डॉटर्स को, हमें सबको इतना सपोर्टिव सिस्टम एनवायरनमेंट देना है, उन्हें मोटिवेट करना है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए। वी हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। लिक्विड गोल्ड कहा जाता है ब्रेस्ट मिल्क को, तो आई थिंक कुदरती तौर से दिया गया इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट है। एवरी चाइल्ड डिजर्व्स इट, एवरी चाइल्ड। अच्छा मैम, एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, अगर हम कंपैरिजन करें अब्रॉड से हमारे इंडिया में, अब्रॉड में तो लेडीज इतनी ब्रॉड माइंडेड है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, क्योंकि अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर रही हैं तो दे नेवर हेजिटेट, वो पब्लिक प्लेस पे भी अपने बेबीज को फीड करवाती है। लेकिन हमारे इंडिया में घर बैठ के भी लेडीज कहीं ना कहीं इस चीज में आज भी एक फोबिया है या कई ऐसी मेंटली इंस्टेबिलिटीज उनके माइंड में चल रही होती हैं फिगर को लेकर और एक जो शर्म होती है उसको लेकर। तो हम चाहते हैं उसको आप कैसे दूर करना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग ऐसी ऑटोनॉमी है, ऐसा पावरफुल एंटिटी है जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। वी जस्ट नीड अ पुश, ऑल अस मदर्स नीड अ पुश। आई एम अ मदर माई सेल्फ, हमें बस एक जोर की जरूरत है। और जब वो ब्यूटी आप देखते हैं कि आपके दूध, संपूर्ण दूध से बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है इतने ब्यूटीफुल तरीके से, आप फॉर्मूला फेड बेबीज से अगर ब्रेस्ट फेड बेबीज को कंपेयर करेंगे तो 3 गुना कम बीमार पड़ते हैं। इट इज अ फैक्ट, सो मेनी स्टडीज हैव बीन डन अबाउट इट। एंड व्हेन योर चाइल्ड इज ग्रोइंग यू फील पावरफुल। आई थिंक फिर उस पावर के आगे ये सब फियर्स बहुत फीके हैं। I have so many beautiful patients of mine who come back and say that I'm so happy that you helped us and I'm so happy because I've been breastfeeding my child. It's a very powerful thing. जब आप करना शुरू करते हैं, कहते हैं ना आप वो दरिया में उतरेंगे आपको तब समझ आएगा। तो ये these are very small fears. And do you want to give more and more seminars regarding this beautiful topic? Why not? I think we've been so lucky. All the beautiful mothers, such esteemed guests have joined us today, and it was an honor to tell them about it. I would love to do more. Wow, beautiful, ma'am. तो चलिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इकबाल नर्सिंग होम की। मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। So I'm Ayana Kharbanda. I'm a patient of Dr. Mrs. Iqbal, and my son is a patient of Dr. Mehak. So as she said, you need a push. Yes. Honestly, in my journey, Dr. Mehak and Mrs. Iqbal have pushed me a lot. But I am a makeup artist and an influencer. तो मेरे लिए बहुत difficult था to breastfeed because I have to 24 hours available for my baby. But then when I took it to my heart that yes, I have to do it for my baby, I think it was the most beautiful journey. It's been 5 months and people have told me like एक बार तो दे ही दे, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, enjoy कर ले. But when I think about it, it's like ये सिर्फ 6 या 1 साल का प्रोसेस है, उसके बाद तो यही करना है and it's a phase that would come back. अभी आपने जितना अपने बच्चे में घी डाल लिया उसके बाद आप नहीं कुछ कर पाओगे. But honestly, it's the most beautiful phase. So I request each and every mother, if you can breastfeed your child, just do it. You will thank Dr. Mehak, Dr. Mrs. Iqbal later for pushing you to do it. You are a working lady, you are a beauty expert. तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब हम अपने बेबी को फीड करते हैं तो अपने बेबी को फीड करते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो हमें हैप्पीनेस मिलती है वो डेफिनेटली हमारे इनहैंस होती है हमारे फेस पर भी। तो लगता है कि इन चीजों से खूबसूरती बहुत उभर के आती है। That is very true. मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं है, जब कोई टेंशन नहीं, आपकी ब्यूटी बाहर कैसे नहीं आएगी ना।
मतलब आपको कहीं जाना, यू जस्ट हैव टू बी देयर। आपको 100 चीजें पैक नहीं करनी, बॉटल्स उठाओ, फार्मूला उठाओ, एंड इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम योर इनसाइड देन यू कैन डू इट। वेरी नाइस। तो चलिए डॉक्टर जगजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमटी इकबाल नर्सिंग होम से। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि ऑनर किया जा रहा है, तो सर 2 शब्द। देखो जी, मैं तो सबको कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। ऐसे सेमिनार हमेशा होने चाहिए, लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट फीड बिल्कुल ये देनी बहुत जरूरी है। जैसे मैडम ने बोला, दिमाग में घी डाला जाता है, बहुत ज्यादा घी डाला तो थोड़ा बोला है, एक्सेस घी डाला जाए ताकि बच्चे का ब्रेन अच्छा हो। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों से आज हमने आपको लाइव रूबरू करवाया। इकबाल नर्सिंग होम में हम पहुंचे जहां पर इनर व्हील क्लब लुधियाना की लेडीज यहां पे आज पहुंचे। एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया इकबाल नर्सिंग होम की तरफ से रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो आप सभी ने सुना कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मदर्स के लिए भी, चाइल्ड के लिए भी। तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत टॉपिक से आज आप सभी रूबरू हुए हैं और अवेयरनेस भी आप सभी में बहुत स्प्रेड होगी। तो हम चाहते हैं इस अवेयरनेस को आप आगे भी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी। टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव आपके साथ जुड़ चुकी हूं और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले जरा एक टेबल है, उस पर आप नजर डालिए। बहुत सारी करेंसी, बहुत सारे नोट्स आपको दिख रहे होंगे और ये वो करेंसी है जिसको लेकर दिन रात आप मेहनत करते हैं। दिन रात कहीं ना कहीं एक होप होती है, एक उम्मीद होती है कि इतनी सारी करेंसी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन ये वो करेंसी है। सबसे पहले टेबल पे मैं आपको बड़ी क्लोजअप से दिखाना चाहूंगी। और ये 500 की जो करेंसी, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, इनके नंबर पे जरा गौर डालिए। 786, जिसको लेने के लिए कहीं ना कहते हैं कि लोग तरसते हैं। ये वो 786 नंबर है जो सभी के लिए बहुत लकी माना जाता है। और ये सारी 500 की नोट्स पे आपको सेम नंबर नजर आ रहा होगा। उसके बाद आप ये वो करेंसी है, वो नोट्स है जो पहले चला करते थे, क्योंकि जब मॉनेटाइजेशन हुई तो नोट बंद कर दिए गए। 2000 के भी हमने देखे थे, 500 के नोट्स भी चेंज कर दिए गए थे। और लेकिन ये सारी वो पुरानी करेंसी है जो कुछ लोगों का पैशन होती है कि कैसे हमने अपनी पुरानी करेंसी को जमा करके रखना है। और ये वो आप देखिए जरा नोट, लाइव में आपको दिखा रही हूँ। 1 रुपए का ये वो नोट है जो अगर आप अपनी जनरेशन को याद करेंगे तो हमें मिला करता था खर्च करने के लिए। ये वो 1 रुपए का नोट है जिसे लेने के लिए हम अपने पेरेंट्स के पास जाया करते थे। ये कॉइन्स भी जरा आप देखिए, ये 10 पैसे, 5 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के वो सिक्के हैं जो कहीं ना कहीं हमें ग्रैंड पेरेंट्स से मिला करते थे खर्च करने के लिए। लेकिन इस पैशन को संभाल के रखना, ये बहुत कम लोगों में होता है ऐसा पैशन कि हम अपनी पुरानी यादों को संजो के रखें। और देखिए ये सिक्का आपको एक दिख रहा होगा, कॉइन आपको दिख रहा होगा 1 क्वार्टर। जी हाँ, 1941 भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो आप सोचिए जरा कि ये कितना पुराना कॉइन है। तो ऐसी बेहद खूबसूरत तस्वीरों से हम आपको लाइव रूबरू करवा रहे हैं। जरा एक बार इस नोट की तरफ भी आप नजर डालिए। 2 रुपए का ये वो नोट है, जी हाँ, 2 रुपीज का। जब हमें मिला करता था तो हम कितने खुश हुआ करते थे। और इस सारी करेंसी को कहीं ना कहीं यादों में संजो के रखना, अपने पास संजो के रखना एक बहुत खूबसूरत पैशन है। और इस करेंसी को जिन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, वो पर्सनैलिटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बार खबरों में आ चुके हैं। बहुत बार हम भी उनके साथ रूबरू हुए हैं, आज फिर एक बार आए हैं। और बात यहाँ करना चाहेंगे कि 1.25 लाख से ज्यादा की करेंसी 786 नंबर की उनके पास है। डॉक्टर जगजीत सिंह आहूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकबाल नर्सिंग होम के एमडी। सर, स्वागत करना चाहेंगे आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, इससे पहले जब रूबरू हुए थे तब भी बहुत सारे नोटों की कलेक्शन हमने देखी थी, लेकिन ये जो खूबसूरत सा शौक है आपका, आज फिर एक बार पूछना चाहेंगे कैसे संभाल के रखना चाहते हैं आप इन्हें? देखो जी, मैं तो इसको अच्छी तरह समझूंगा जी, क्योंकि जितने भी मेरी फैमिली मेंबर हैं, देखो और भी हैं, उनको कम से कम इतना पता लगे कोई हिस्टोरिकल चीज पड़ी है। और मेरे पास आज भी लोग आते हैं नोट देखने के लिए और मैं उनको नोट बड़ी खुशी से दिखाता हूँ। ये 786 मेरे पास पुराने सिक्के भी पड़े हैं, जो 1941 का सिक्का है, मेरे जन्म से पहले का, वो भी इंग्लैंड के रानी का, वो भी पड़ा है। सारे मेरे पास पड़े हैं, 1 2 3 4 5 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, सब जितने भी ओल्ड है वो सारे मेरे को पे है।
तो सारे मैं सामभ के रखे हैं ताकि हर बंदा आवे इन खुशी ना देखे। बिल्कुल सर, जब भी कहते हैं ये पैसा हमारे हाथ में आता है तो कई बार टिकता नहीं है, हमें दिल करता है फटाफट इनको हम खर्च कर दे, लेकिन आपने इतनी संभाल के अपनी करेंसीज को, अपनी यादों को संभाल के रखा है। सर ये पैशन कैसे, मीन्स पहले भी किसी को ऐसा शौक रहा है आपकी फैमिली में? नहीं, हमारी फैमिली तो किसी को शौक नहीं था, ये मुझे शौक बाहर से मिला, मुझे दोस्तों से शौक मिला था, किसी के जगह से मैं बैठा था, हर आदमी ने कहा मेरा ये शौक है, मेरा ये शौक है। मेरा तो कोई शौक होता ही नहीं था पहले। एक ने कहा भी मैं तो ढक्कन इकट्ठे करता हूँ बोतलों के, अच्छा, और एक कहता मैं मोर पंख इकट्ठे करता हूँ, ओके, और दूसरा तीसरे ने कहा भी मैं सिक्के स्टैम्प्स इकट्ठे करता हूँ, और उनमें से एक बंदा बोला मैं नोट इकट्ठे करता हूँ, वो भी 786। ओके, और मैंने उसको बोल दिया, मैं क्या मैं तुम्हें नोट इकट्ठे करके दिखाऊंगा, 786 चैलेंज देता हूँ। कहता डॉक्टर साहब भूल जाओ, ये नोट आपको इतनी इजीली नहीं मिलेगा जी, और मिलना भी नहीं, आप उम्मीद ला दो कि ये चैलेंज एक्सेप्ट। मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और ये नोट इकट्ठे करने शुरू किए। इसमें मेरे मित्रों ने मेरा साथ दिया। पंजाब में जहाँ भी 786 नोट मिलता था वो मुझे देने आते थे, और इस बार भी मैं कोई मांगता उसको फ्री दे देता हूँ। कहना डॉक्टर साहब पैसे ले, मैंने कहा क्या लेने हैं। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं आपको लगता है क्योंकि ये जो नंबर ऐसा है 786 786 जिसे हम कहते हैं, कई लोगों के लिए ये बहुत लकी नंबर माना जाता है कि आप अपने पास रखेंगे तो आपके लिए ब्लेसिंग बन के ये सामने आएगा। तो आपकी भी क्या ऐसी सोच है? देखो जी, मेरी तो सोच है कलेक्ट करने की, जी, सबको खुश करने की, और जो देना परमात्मा ने अपने आप ही दे देना। फिर मांगे मोती मिलते हैं, बिल्कुल मांगने से कुछ नहीं मिलता, और मांगना चाहिए भी नहीं। मेरी बिल्कुल। अच्छा सर, एक न्यूज़पेपर की कटिंग पे हमारी नजर गई थी, हम आपके ऑफिस में है यहाँ पे, ये पैसा पैसा करता है पर पैसे पे नहीं मरता है, बड़े खूबसूरत से टाइटल के साथ। तो सर ये जब टाइटल मिला था कैसा लग रहा था, वो मोमेंट कैसे थे जब अखबार की कटिंग्स में डॉक्टर जगजीत का नाम आता था कि इतने खूबसूरत शौक रखते हैं आप? बिल्कुल, बहुत खुश हुआ मैं, कम से कम मेरा नाम भी कहीं आता है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा गिनी बुक्स में ना कराओ, मैं कहा मुझे गिनी बुक में दर्ज कराने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त मित्र ही मेरे लिए अवार्ड। बिल्कुल सर, हम आपसे लाइव और सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये जो कॉइन्स की कलेक्शन हम देख रहे हैं सर, थोड़ी सी मेमोरीज आप चेरिश करना चाहेंगे? क्योंकि हमने पहले बात की थी, जो हमारी जनरेशन है, हमें ऐसे सिक्के मिला करते थे हमारे दादियों से, नानियों से कि आप जाके खर्च करिए। फिर जब हमारे पेरेंट्स की बारी आई तो 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का। तो सर ये जो यादें हैं इनको संजो के रखना आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है? बहुत अच्छा लगता है कि पुराने सिक्के जिन्होंने देखे नहीं कभी, वो मेरे पास आके देखते हैं। आजकल तो 20 रुपए का सिक्का भी आ गया, 50 का भी आ गया। बिल्कुल सर। हाँ, 10 का तो है ही है, 5 का भी है। ये सारे सिक्के मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। ओके। जो हमारे इंडियन करेंसी के रुपए हैं, 1 रुपया, 50 पैसे, 59 सांदे, 54 सांदे, 40 सांदे, वो सारे पैसे इकट्ठे करके रखते हैं। बिल्कुल। और कलेक्शन की है। और सबसे खुशी की बात ये है कि मैंने एक नोट अपने बर्थडे का कलेक्ट किया। अच्छा। जो मेरी बर्थडे है 14/1/54, और मैं बड़ी मेहनत से ये नोट पैदा किया गया, और जिसने भी मेहनत की इस नोट मिलता नहीं किसी के बर्थडे का। सर आपको नहीं लगता आपको इसको अच्छी तरह फ्रेम करवा के रखना चाहिए? आप मुझे कहा गया है और मैं उनको साथ लेके जा रहा हूँ तो इसको फ्रेम करके रखा जाए। पर ये नोट बड़ी मुश्किल से मिला, कितने सालों के बाद मिला, क्योंकि ये नोट मिलना मुश्किल होता है। बिल्कुल सर। कहीं भी करेंसी जा सकती है, लेकिन मुझे वो नोट जिसने भी लाके दे मैं उसका धन्यवाद दूं। तो सर और भी कंट्रीज के ऐसे करेंसीज हैं जिन्हें आप शौक रखते हैं संभाल के रखने का? बिल्कुल। अमेरिका दी, ऑस्ट्रेलिया दी, यूके दी, सारी इकट्ठे की थी। अच्छा, सारी करेंसीज अपने हम चाहते हैं थोड़ा बहुत आप दिखाना चाहेंगे सभी दर्शकों को? डॉलर का रेट सुनते ही लोगों को हार्ट अटैक आने लग जाता है। छोटे छोटे डॉलर भी हैं, बड़े भी हैं। ये कनाडा की है। ऐसी करेंसी अगर आ जाए तो ज्यादा संभालना उनके लिए इतनी डेलिकेट ना हो, संभालना इजी रहता है करेंसी। बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, बिल्कुल घटिया बना देते हैं। जो नए नोट आए हैं बिल्कुल जीरो है, 2 बार जेब में डालो तीसरी बार फट जाएंगे। चलिए आज लाइव ही हम आपका मैसेज पहुंचा देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं अब करेंसीज की क्वालिटी को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी आने वाली जनरेशन भी संभाल के रखना चाहिए। बिल्कुल चाहिए, और गवर्नमेंट को तरक्की करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत वैसे सर की तरफ से। तो देखिए ये एक वो पैशन है, एक वो शौक है जो सर की तरफ से रखा गया। लेकिन सर हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे कि
आगे जो उनकी जनरेशन आएंगी वो भी इस तरीके से खूबसूरत कलेक्शन करके अपनी जनरेशन को दिखा सकते हैं कि हमारे टाइम पे इस तरीके की करेंसीज चला करती थी। बिल्कुल मैडम, वो तो करेंगे ही, लेकिन उस टाइम ये करेंसी नहीं होगी जो आने वाला समय आ रहा है, उसमें कोई करेंसी मिलने वाली नहीं। मेरी तरफ से यही है कि पंजाब में लोगों को कोई ना कोई शौक होना चाहिए, क्योंकि जो कोई शौक करता है, चाहे कबड्डी का शौक है, ढक्कन इकट्ठे करने का शौक है, स्टैंप इकट्ठे करने का, मोरपंख इकट्ठे करने का, वो इकट्ठे करनगे तो घट्टो घट नशा मुक्त पंजाब होएगा। और मैं नशा मुक्त पंजाब चाहना, हर बंदा एक शौक रखे, चीजों को इकट्ठा करे तो नशा मुक्त रहे। बिल्कुल, पैशन के साथ एक खूबसूरत मैसेज। जी हाँ, आपने देखा इकबाल नर्सिंग होम से डॉक्टर जगजीत सिंह आहूजा के एमडी हमारे साथ जुड़े, जिन्हें कहीं ना कहीं करेंसीज कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक है और लाइव तस्वीरों से हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं। आप कॉइन्स की कलेक्शन देख सकते हैं, आप ये 786 वाले नंबर्स के नोट की कलेक्शन देख सकते हैं। तो आने वाली जनरेशन को भी उन्होंने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है कि आप भी अपना, कोई भी आपका शौक है उसको, उसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो यादें हैं ये कभी दोबारा वापस नहीं आती, ताकि सालों साल तक आने वाले टाइम पे आप अपनी जनरेशन को ये खूबसूरत तस्वीरें दिखा सके। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूवर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, एक बहुत ही प्यारी सी कवरेज लेकर लाइव आज सभी के साथ मैं रूबरू होने जा रही हूं। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख किसमें है, सबसे बड़ी हैप्पीनेस आपको किसमें मिलती है। उसका सबसे बड़ा जवाब यही आएगा, माता पिता बनने में। और आज ऐसी एक खूबसूरत तस्वीर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी चल रही है। अभी क्यों है एग्जैक्टली, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी स्लिप आपको दिख रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी आईवीएफ डे। आईवीएफ के बारे में आप सभी अवेयर होंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी, ब्रीफ करना चाहूंगी, ये वो टेक्निक है जिसमें आपको माँ बाप बनने का सुख मिलता है। और 1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का बर्थ हुआ था, जिसके बाद ये टेक्निक बहुत जल्दी इंडिया में आ गई थी। और नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट जो आईवीएफ सेंटर है इकबाल नर्सिंग होम में पहुंच चुके हैं, जहां पर डॉक्टर्स की टीम आप देखिए हमारे साथ जुड़ चुकी है। और 25 जुलाई को वर्ल्ड आईवीएफ डे सेलिब्रेट किया गया, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इकबाल नर्सिंग होम में लास्ट वीक में 3 बेबीज का बर्थ हुआ, आईवीएफ बेबीज का। और 25 जुलाई को सेम डे एक बेबी का बर्थ हुआ था इस हॉस्पिटल में। हमारे साथ आप देखिए पैनल जो जुड़ चुका है डॉक्टर्स का। डॉक्टर इकबाल हमारे साथ है, डॉक्टर मिनी आहूजा जो आईवीएफ की स्पेशलिस्ट है। तो चलिए खूबसूरत से मोमेंट्स को आज आप सभी लाइव हमारे साथ एंजॉय करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मिनी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे बात करेंगे। मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे 25 जुलाई को जो लाइव हमने तस्वीरें देखी थी इकबाल नर्सिंग होम में, वहां पे भी केक कटिंग सेरेमनी की गई और सेम डे हमने देखा एक आईवीएफ बेबी का बर्थ हुआ था। मैम आप बहुत टाइम से इस प्रोफेशन में हैं, आप देख रहे हैं कि एक सबसे बड़ा सवाल हमने यही पूछा था सारे व्यूवर्स से कि सबसे बड़ा सुख इसी में है माँ बाप बनना। तो मैम कैसे ब्रीफ करना चाहेंगे इन खूबसूरत लम्हों को आप? मतलब अब एक ये आईवीएफ की जो जर्नी है इतनी मैजिकल बन गई है, अच्छी सक्सेस दे रही है। और जिन्होंने ये सोचा था, अभी एक 18 साल के बाद एक कपल का बच्चा हुआ, उन्होंने कहा कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी जी। तो मतलब उनके लिए भी ऐसी उम्मीद जागी और उनके घर एक बच्चा आया। तो आईवीएफ एक ऐसी चीज है जिसके साथ जिन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी है उनके घर में भी बच्चा हो सकता है। बिल्कुल। मैम थोड़ा सा आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो टेक्निक है 1978 में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का बर्थ हुआ था, उसके बाद इंडिया में बहुत जल्दी आ गई थी, लेकिन सक्सेस रेट उस टाइम इतना नहीं था। तो आज हम पूछना चाहेंगे इसका सक्सेस रेशो है जो रेट है वो कितना है? देखिए ऐसा है कि 40% सक्सेस रेट वर्ल्ड वाइड कोटेड है, ठीक है, लेकिन ये हर एज के लिए डिफरेंट है और क्या प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड डिफरेंट है। अगर सब कुछ अच्छा है तो कई बारी हम इसे 60 to 70% सक्सेस रेट भी कह सकते हैं। जैसे अगर लेडी यंग है, उसके एग्स अच्छे हैं, सपोजिंग उसकी सिर्फ ट्यूब्स नहीं है, उसके कारण उसे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो ऐसे केसेस में अगर एग भी अच्छा है, यूट्रस भी अच्छा है, हस्बैंड का सीमेन भी अच्छा है, तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। बिल्कुल मैम, ये कहीं ना अगर हम टेक्नोलॉजी से टेक्निक से हट के बात करें तो एक इमोशनल पॉइंट पे हम आके करते हैं कि आज जो इंडियन पेरेंट्स हैं बहुत अवेयर हो चुके हैं और अपनी बात बिल्कुल बेझिझक होके डॉक्टर्स के सामने रखने में बिलीव करते हैं। लेकिन इससे पहले एक शर्म वाला एक माहौल होता था घरों में कि हमने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना, लेकिन आज ओपनली हर पेरेंट डॉक्टर से कंसल्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस टेक्निक को
अडॉप्ट करने के बाद लगता है कि हर एक उस परिवार में खुशी आ सकती है, जो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से एक उदासी वाला माहौल था। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अब ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने सोचा था कि बस सब ऐसे अकेले ही लाइफ निकालनी है, जी लेकिन जब उनके घर में बच्चा आता है, कई बार जैसे 40+ होते हैं तो वो इतने खुश होते हैं कि अपनी एज ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। एंड मैम, ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट आईवीएफ सेंटर जहां हमने आप इस टाइम खड़े हैं, मैम ऑलमोस्ट कितने टेस्ट ट्यूब बेबीज का बर्थ हो चुका है यहाँ पे? कई कई बच्चों का जन्म हो चुका है और कई फैमिलीज खुश हैं। कई फैमिलीज खुश हैं। तो कैसे पेरेंट्स यहाँ पे आके अपनी खुशी जाहिर करते हैं आपके सामने? क्योंकि बीइंग एज अ लेडी, बीइंग एज अ मदर, आपको भी वो पल बहुत खूबसूरत लगते होंगे जब आपके सामने वो खूबसूरत तस्वीर आती है कि एक नन्ही सी जान माँ बाप की गोद में होती है। बहुत अच्छा लगता है कि आज भी लोगों के मन में ग्रेटिट्यूड है, क्योंकि आजकल ऐसा वर्ल्ड है जिसमें शायद लोग थैंकलेस होते जा रहे हैं। Yes. लेकिन जब ऐसे बेबी घर में आता है तो वो जब हमें थैंकफुल होते हैं या ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं तो लगता है कि पॉजिटिविटी है। बिल्कुल। तो मैम, जैसे आपने एज ग्रुप की बात की कि ऑलमोस्ट किस एज ग्रुप तक आईवीएफ टेक्निक अडॉप्ट करने के बाद पेरेंट्स बन सकते हैं? ऐसे है कि अकॉर्डिंग टू लॉज एक लेडी को 50 इयर्स तक ही अलाउड है आईवीएफ, उसके बाद उसे अलाउड नहीं है। ओके। तो मतलब एक कट ऑफ उन्होंने रख दिया है ताकि ये ना हो कि जब लेडी प्रेग्नेंट हो उसकी एज इतनी ज्यादा हो कि वो बच्चे का ध्यान ना रख सके। बिल्कुल मैम। एंड ये कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है आईवीएफ का? देखिए, 1 महीने का जैसे पहले एक पिकअप होता है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। 1 मंथ में हम पिकअप कर लेते हैं, अगले मंथ हम जो फ्रोजन एम्ब्रियोज हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं। कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लम्हे हैं जहां आपके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस भी होते होंगे, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे भी होते होंगे जिन्हें शायद निराश होना पड़ता होगा कि आईवीएफ टेक्निक भी उनके ऊपर काम नहीं करती। हाँ, कई बार ये आईवीएफ फेलियर्स आते हैं, पर मैंने देखा है कि जो तब भी घबराते नहीं है ना, जो क्विट नहीं करते, वो हमेशा जीतते हैं। वेरी नाइस। तो चलिए अब हम आपको मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर इकबाल आहूजा से। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे आपको, क्योंकि आज जो लाइव तस्वीरें सारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो ये है कि आज भी हम वर्ल्ड आईवीएफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइव आप सभी के साथ। सर, कैसे वो खुशी जाहिर करना चाहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट जो वीकेंड था उसमें 3 बेबीज ने बर्थ लिया और सेम डे भी, तो ये बहुत बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहा होगा उस दिन आपका। हम ये देख रहे हैं कि बड़े अच्छे पॉइंट पे पहुंच गए हम। पहले जो सक्सेस बहुत पुअर थी, जी। हमारी सक्सेस है सेंटर की बड़ी अच्छी है और हमें बहुत लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। और जो लोग सबसे निराश होकर आते हैं, कई बार आईवीएफ फेलियर के साथ भी आते हैं बाहर से, तो उनको भी यहाँ हम अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी है और वी आर प्राउड कि जो हमारी टीम सारी अपनी है, हम किसी को बाहर से नहीं मंगाते। और सारी टीम मेरी इंडियन ट्रेन भी है, फॉरेन ट्रेन भी है। दोनों को जब हमने शुरू किया था 92 में, 91 में, तो मैं हर एक अपने मेंबर को बाहर लेके गया था पहले, वहाँ आईवी सेंटर से ट्रेनिंग दिलाई ताकि हमें कुछ भी बाहर से ना काम करना पड़े। अब तो बहुत आसान काम है, हमारे टाइम पे कोई भी चीज़ रेडीमेड नहीं थी, तो हम रात भर के बैठ के मीडिया तैयार करते थे, पाउडर लाते थे पहले, वो भी इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तो इट वाज ऑल वॉकिंग इन ए जंगल, जहाँ रास्ता नहीं था कोई भी, तो हमने अपना रास्ता बनाया। और आज वी आर वेरी प्राउड कि हमारी टीम बेस्ट टीम है, हमें किसी को डिपेंड नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सर, बीइंग एज अ सीनियर डॉक्टर आपको लगता है कि समटाइम चैलेंजेस भी बहुत फेस करने पड़ते हैं? हाँ, क्यों किसी का इतना अच्छा होता है फिर भी इसका फेलियर आता है। क्यों फेलियर आता है इसका कारण नहीं पता लगता। तो वहाँ पे हम भी निराश होते हैं, इसका सब कुछ अच्छा था, बिल्कुल, तो वाई दे डिड नॉट कंसीव। कहीं कहीं भगवान का भी हाथ होता है ना, जी बिल्कुल, तो हम फिर भगवान को प्रे करनी पड़ती है, इसको दे दो। बिल्कुल सर, हाँ, ये ना हो कि मैंने नहीं देना, मनाना पड़ता है, जी। इसको दो, बच्चा जरूर दे दो। कहीं ना कहीं एक इमोशनल टच के साथ आप पेरेंट्स के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। सर, मैम से एक बड़ा सेंसिटिव सा सवाल हमने यही पूछा था कि समटाइम्स जैसे हम बात की मैम ने कि आईवीएफ टेक्निक फेल हो जाती है, आप उनको इमोशनली पेरेंट्स को करते हैं, लेकिन एक सवाल और भी था कि पेरेंट्स समटाइम्स आते नहीं, एक शर्म होती है कि हमने डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करना, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि ये बहुत एक सेफ प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करने के बाद आप खुशियों को अपने घर में ला सकते हैं? नहीं, हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हेसिटेशन के कारण लोग कई कई साल वेस्ट कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट पीरियड है वो निकल जाता है आगे। जी तो वो नहीं होनी चाहिए, हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए। पर अब चेंज आ रहा है, अब तो कपल बिफोर मैरिज आके मिलते हैं, कई प्लानिंग के लिए मिलते हैं। दूसरी जो नई बीमारी है ना, दूसरी नई बीमारी है कि जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो कहते हैं हमने 2 साल बच्चा नहीं करना, 3 साल बच्चा नहीं करना, कैरियर बनाना है सारा। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट पीरियड है, जो उसकी विंडो है, वो खो देते हैं, और जब वो चाहते हैं तो फिर होता नहीं, बिल्कुल फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन है।
इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनको। और सम पीपल से कि नहीं हमें नहीं चाहिए, इंटरनली चाहिए होता है। जी कोई ऐसी औरत या आदमी नहीं है जिसको अपना बच्चा नहीं चाहिए। नहीं तो एंड में अगर कहेंगे हमने किस लिए काम किया, ये घर किस लिए बनाया, अगर हमारे को नेक्स्ट किसको देखे जाए तो ये पेन तो है अंदर। और कई डिवोर्सेज हैं जो हमने बचाए हैं। ओके जो हम पूछते हैं कि वाई यू वांट टू डिवोर्स, करते बच्चा नहीं है, हमने कहा 6 महीने दे दो, अगर नहीं हुआ तो फिर कर लेना। 6 महीने उसके बच्चा हो जाता है। वेरी गुड। तो सोशली भी कनेक्ट हो हाँ, रहे काफ़ी फैमिली डिवोर्स जो पुअर पेशेंट्स हैं उनकी हम हेल्प करते हैं। उनको पता होता है हमें कॉस्ट ज़्यादा है तो दे कांट अफोर्ड, तो हमारे पास रिक्शा वाले भी आते हैं, ओके ये वेटर्स भी आते हैं, कई लेबरर्स भी आते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल शुरू से रहा है कि नो बडी शुड गो बैक बिकॉज ऑफ मनी, बिल्कुल एंड वी आर फॉलोइंग दैट। चाहे IVF करना पड़े, चाहे हमें अपने आप से करना है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट हेल्प करे। गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगाती है इंजेक्शन के ऊपर, जो मेडिसिन 100 रुपये की सिर्फ 400 रुपये गवर्नमेंट ले लेती है, तो 500 रुपये कॉस्ट होगी ना। अगर गवर्नमेंट ही अपना 400 रुपये काट दे तो 100 रुपये में बाकी रह जाएगा। ऐसे मशीनरी जो है उस पर कस्टम ड्यूटी है वो ना लगाए। बिल्कुल तो आई थिंक वी कैन मेक इट वेरी चीप। यस सर। तो उनको नोबडी इज अप्रोचिंग फॉर दैट। अभी तो सभी अपने में लगे हुए हैं। स्टिल यू ऑल आर डूइंग सोशल वर्क। मैम जैसे सर ने बात की कि लेबरर्स भी समटाइम्स आ जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन एक उम्मीद लेके आते हैं इकबाल नर्सिंग होम में कि यहाँ से वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो आपको लगता है कि उनको कन्विंस करना इस प्रोसीजर के लिए, इस टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है? हाँ, जब अफोर्ड नहीं कर पाते और हम उन्हें कहते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे, जितनी हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल हेल्प हम करेंगे। और कई बार हमने देखा है कि जो लोग जैसे जहाँ वो काम करते हैं उनके जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो भी उनकी हेल्प करते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल। तो मैम जाते जाते हम चाहते हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीर से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। केक हमारे सामने है, तो मैम आप सभी सीनियर डॉक्टर्स हैं, अपने लिए खुद आप क्लैप कीजिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में आप कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बन के आ रहे हैं। सबके घर में ढेर सारी खुशियां लेके आप आ रहे हैं, तो एक अपने लिए तो जरूर आज आप जरूर क्लैप कीजिए प्लीज। तो चलिए एक बार डॉक्टर चावला ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। और सर आपके पास भी हम आएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो खूबसूरत डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? बातें तो सारी होगी। मैं सबसे पहले तो सबको बधाई दूंगा IVF डे की। और IVF में जो बच्चे होते हैं दैट इज रियल खुशी। जो सारी बातें की हमने, एक चीज में मैं ज्यादा कहना चाहता हूँ कि काउंसलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि काउंसलिंग पहले और बाद में, पहले तो इसलिए करनी होती है कि देखो सारा प्रोसीजर समझाना है और उसमें फेलियर भी है। इट इज नॉट 100%, नोवेयर इन द वर्ल्ड इट इज 100%। सो उसके लिए पहले काउंसलिंग होती है कि फेलियर हो सकता है, फिर फेलियर होने के बाद भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उनको कहना पड़ता है कि डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, एक नहीं तो दूसरी बार कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस। बाकी आज के दिन मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, स्पेशली आपको जो हमारा कवर कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपसे भी हम चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इन खूबसूरत मोमेंट्स के ऊपर आप? IVF डे को सबको मुबारक देना चाहता हूँ और सबके घरों में चिराग चाहता हूँ। और मेरी यही उम्मीद है हर घर में बच्चा बच्चा हो और घर खुशहाल बने। सर घर घर में बच्चा हो, पॉपुलेशन इंक्रीज हो हमारे इंडिया की। पॉपुलेशन तो इंक्रीज इतनी नहीं हो सकती आजकल, 1 या 2 से ज्यादा नहीं। 2 से ज्यादा नहीं। तो आपने देखा इकबाल नर्सिंग होम में हम पहुंचे। वर्ल्ड IVF डे 25 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया, लेकिन आज फिर से एक बार इन खूबसूरत तस्वीरों से रूबरू करवाने के लिए हम आप सभी के साथ जुड़े। केक कटिंग सेरेमनी रखी गई, तो बहुत अच्छे मोटिवेशनल मैसेजेस भी दिए गए और गवर्नमेंट से एक अपील की गई कि प्लीज आप आगे आके सपोर्ट कीजिए डॉक्टर्स को, ताकि आने वाले टाइम पे जैसे सर का कहना है कि हर घर में एक चिराग जलता हुआ हमें जरूर नजर आए। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। चलो मेरे साथ सर आज प्यार देन पहुंचे हो इत्थे, की कहना चाहोगे जेड़ा आज चलो मेरे साथ सर मिठा मुंह कराओ, सर का मिठा मुंह कराओ, ऐसा नाले दिन भी ऑलरेडी
ਸਾਈਂ ਮੇਰ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮੇਰ ਹੀ ਕਰੇ सच्चे दरबार की जय। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਹੋਇਆ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਸ ਬੰਦੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਸਾਈਂ ਮੇਰ ਕਰੇ ਹਾਂ ਮੇਰ ਹੀ ਕਰੇ ਲੈ ਆਓ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।